Hello friends, welcome to one more session of economics of Padle Baba, and today we are going to discuss the law of supply. The law of supply, as we have done the law of demand earlier, is an equally important chapter, and this is the law of supply in your textbook. I hope all of you have got your economics textbooks now. अब तक सबके पास अपनी अपनी टेक्स्ट बुक आ गई होंगी. सप्लाई एनालिसिस का चैप्टर जो है आपके टेक्स्ट बुक के अंदर चैप्टर नंबर 4 है. इसके पहले कौन से चैप्टर्स हम लोग कर चुके हैं नहीं पता, देख लो टेक्स्ट बुक खोल के. ओके, नाउ इसके अंदर जब हम लोग डिमांड कर रहे थे, डिमांड के अंदर भी डिवाइडेड द लॉ ऑफ डिमांड, अलग से चैप्टर था. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अलग से चैप्टर था. लेकिन सप्लाई के अंदर, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी डन द लॉ ऑफ डिमांड, आपको बेसिक कंसेप्ट पता है, इसीलिए सप्लाई एनालिसिस के अंदर एक साथ पूरा दिया हुआ है. तो कंपैरेटिवली ऐसा लगता है कि सप्लाई एनालिसिस का चैप्टर थोड़ा बड़ा है. It's not like that. It can be split up into elasticity of supply and law of supply. ठीक है, so let us start. Can we start? Okay. I hope you have the textbook in front of you. और जैसा कि आपको पता है कि ये लेक्चर अगर आप अटेंड कर रहे हो या हमारे पहले के लेक्चर्स आप अटेंड कर चुके हो, तो you know that my basic requirement is you should have the textbook in front of you, और आपके पास एक रफ बुक होना चाहिए और एक पेन होना चाहिए. I repeat, I just want a rough book. I don't want a fair book. Lectures आपके सामने है, आप उसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, कोई इश्यू नहीं है. Okay, these are available on Padle Baba, on Facebook, YouTube, Instagram, and this is my WhatsApp का number. You can very well contact me if you have any doubts, and no scamming, please. I hope you respect the person's privacy, you respect a person's integrity. So let's start. The topics which we are going to discuss in this session, let's say कितने मिनट आप लोग मुझे बर्दाश्त कर सकते हो? 15 minutes, 20 minutes, 25 minutes. कहाँ से मुझे इशारा आ रहा है? Somebody said 20? Okay, okay. Let's keep it between 20 to 25 minutes, and hopefully we should be able to complete these things. Right? Now let's zoom this and we can see all these things which we are going to cover. The first thing is the total output. Now this is the page numbers. In your textbook, page number 37 पे आपको ये 3 टॉपिक्स मिलेंगी, पेज नंबर 38 पे ये मिलेगा, पेज नंबर 39 पे ये मिलेगा. So there is no ambiguity. Directly please open your textbooks to page number 37. टेक्स्ट बुक तो खरीद लिया ना आप लोग, इकोनॉमिक्स की टेक्स्ट बुक तो खरीद लिया ना. The revised syllabus which is applicable from the academic year 2020-21 onwards. We are going to discuss about that. लेकिन बेसिक फंडा सेम है. अगर आपके पास इसके पहले की टेक्स्ट बुक है तो भी सेम है, या कुछ लोग इसको कोई और सदी में देख रहे हैं तो भी द बेसिक फंडामेंटल विल रिमेन द सेम. अगेन आई विल लाइक टू टेल यू कि ये लेक्चर के अंदर या जो भी लेक्चर्स आप पढ़ले बाबा पे देखते हो, ओके, आई विल ट्राई टू क्लियर योर कंसेप्ट्स. आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर ऊपर वाले ने चाहा तो बहुत ही क्लियर हो जाएगी, टू सच एन एक्सटेंट दैट यू कैन एक्सप्लेन इट टू अदर्स. लेकिन आपकी एग्जाम ओरल होने वाली नहीं है, आपकी एग्जाम वाइवा नहीं है, यू हैव रिटन एग्जाम. तो आपको एग्जाम में क्या लिखना है, यू हैव टू सप्लीमेंटेड इट विथ योर टेक्स्ट बुक. टेक्स्ट बुक आपको थरली पढ़ना है, वर्ड टू वर्ड. उसके अंदर से कोई भी सेंटेंस कैन बी गिवन एज अ फिल इन द ब्लैंक, इट कैन कम एज एन ऑब्जेक्टिव. ठीक है. फॉर क्वेश्चन आंसर्स इफ यू आर रिफरिंग टू सम अदर सप्लीमेंट्स, still your basic textbook will remain constant. ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है. Okay? Now the first topic is what do you mean by total output? Total output का मतलब क्या होता है? पूरी इकोनॉमी के अंदर या पूरी कंट्री के अंदर एक पर्टिकुलर टाइम में जितना भी प्रोडक्शन होता है, that is called as total output. Okay? Let me read the exact thing. Total output can be defined as the sum total of the quantity of the commodity produced. For example, let's say sugar. So sum total of the quantity of sugar produced at a given period of time, मसलन इस साल में, in the entire economy as a whole. That is your total output. I hope I'm clear. पूरी इकोनॉमी के अंदर, पूरी कंट्री के अंदर कोई भी एक कमोडिटी का जितना भी उत्पादन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज टोटल आउटपुट. अभी ये पूरा जब टोटल आउटपुट बाहर आता है तो एक बंदा तो नहीं लेता है,
right? You might be having so many middlemen, you can be having so many distributors. ठीक है. और एक बात आप लोग ध्यान में रखिए, whenever we are talking about supply analysis, when we are talking about law of demand analysis, जब भी आप अपने आप को एक ग्राहक समझ रहे थे, you were considering yourself to be the buyer, खरीदने वाला. Now when we do the law of supply, आप जहन में ये रखेंगे कि आप बेचने वाले हो, आपको कोई चीज बेचना है, तो आप कब बेचोगे, कैसे बेचोगे, क्यों बेचोगे, कितना बेचोगे. मेंटालिटी आपकी क्या होगी, आपकी एक दुकान है और आपको कोई चीज बेचना है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन आता है वो है स्टॉक वर्सेस सप्लाई. सप्लाई अगर मैं देखूं तो एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम अगर कोई चीज, अगेन लेट्स कम टू द टॉपिक ऑफ शुगर. मेरी किराने की दुकान है, सो मेनी आइटम्स में बेचता हूं, उसमें एक आइटम शक्कर भी है, शुगर भी है. तो फिलहाल जो है, लेट्स से द प्राइस ऑफ शुगर इज 38 रुपीज पर किलो. जब शक्कर का प्राइस 38 रुपीज पर किलो है, तो मैं कितने किलो बेचने के लिए तैयार हूं, दैट इज कॉल्ड एज सप्लाई. At any given point of time, at a given price, what is the quantity of goods that I am willing to supply? एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में एक प्राइस पे मैं कितनी क्वांटिटी बेचने के लिए तैयार हूं इज कॉल्ड एज माय सप्लाई. तो स्टॉक क्या हुआ, आप खुद बताएं. दुकान जो मेरी है, किराने की दुकान है, मेरे पास शक्कर रखी हुई है गोनी भर की, लेकिन क्या मेरे पास उतना ही शक्कर है? आप लोग जाते होंगे ना अपने मम्मी पापा के साथ, या तो आप तो अब बड़े हो गए, आप खुद ही चले जाते होंगे दुकान पे लाने के लिए, मम्मी जो बाजार लिख के देती हैं. तो कभी कभी क्या होता है, जो बड़े दुकानदार होते हैं या छोटे दुकानदार भी होते हैं, उनके पास गोदाम होता है जिसके अंदर स्टॉक पड़ा हुआ रहता है. ये वर्ड आप सुने होंगे ना, आपको ज्यादा चाहिए, मेरे पास स्टॉक पड़ा है मेरे गोदाम में. तो ये जरूरी नहीं है कि आज की तारीख में जब प्राइस 38 रुपीज पर किलो है तो वो दुकान वाला सारा माल आपको दे देगा. नो, वो भर के रखा है. उसका परचेज प्राइस ज्यादा होगा या कम, 38 से ज्यादा होगा या 38 से कम होगा. ऑब्वियसली उसको भी 2 पैसे कमाना है ना. अगर वो 38 पे आपको दे रहा है, ठीक है, तो हो सकता है उसको 28 में मिला हो सकता है उसको 32 में मिला हो. लेकिन आज अगर 38 प्राइस है तो वो इतने क्वांटिटी बेचने के लिए तैयार है. लेट्स से 500 किलोग्राम वो बेचने के लिए तैयार है. तो सप्लाई कितना हो गया, 500 किलोग्राम्स. लेकिन उसके गोदाम के अंदर जो पड़ा हुआ है, दैट आई कॉल एज स्टॉक. उसके गोदाम में हो सकता है 10,000 किलो ऑफ शुगर है, तो एकदम सस्ते में उसने खरीद लिया है. ठीक है, कल जाके प्राइस 38 से 42 हो जाता है, तो उसको बोलने लगेगा किराना वाला कि मैं 1000 किलो बेचने को तैयार हूं. So the supply will increase. Why? Because the price has increased. 38 पे वो 500 किलो बेच रहा था, 42 पे वो 1000 किलो बेचने लगा. Let's say for example the price goes up to 52. He says I will sell 5,000 kilos of sugar. प्राइस बढ़ गया, सप्लाई भी बढ़ गया. तो at a point of time, at a given price, तुम कितना बेचने के लिए तैयार हो, that is called as supply. और तुम्हारे पास गोदाम में कितना माल एक साथ पड़ा हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज स्टॉक. इज इट क्लियर? स्टॉक वर्सेस सप्लाई. तो ये बात तो हमें ध्यान में आ गई कि स्टॉक हमेशा सप्लाई से ज्यादा ही होगा. ठीक है ना. अच्छा, इसमें एक छोटी सी चीज आपको जो ध्यान देना है वो ये है कि ना, शुगर पेरिशेबल कमोडिटी नहीं है. ठीक है, ओवरनाइट में अगर गोनी में रखूंगा तो अगले दिन खराब नहीं होने वाली है. तो जो ऐसी चीजें होती है उसके अंदर स्टॉक ज्यादा होता है, गोदाम में बहुत सारा माल पड़ा हुआ है, सप्लाई कम है. लेकिन जो पेरिशेबल प्रोडक्ट्स है, लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा है, वो फिश फॉर एग्जांपल या मीट फॉर एग्जांपल या मिल्क फॉर एग्जांपल वो सप्लाई करता है और उसके पास कोल्ड स्टोरेज नहीं है. कोल्ड स्टोरेज आपको पता है जैसे गोदाम होते हैं वैसे आइस गोदाम होते हैं जहाँ पे टेम्परेचर इज -15 -20 डिग्री सेल्सियस, जहाँ पे थिंग्स हम लोग स्टोर करते हैं, जैसे फ्रूट स्टोर किया करते हैं, उसके पास नहीं है. तो वो जितना माल लाता है उतना माल उसको सेम डे बेच देना पड़ता है. जैसे कि आप देखे होंगे किराने की दुकान के बाहर ट्रे में दूध की पैकेट्स रखी हुई होती है,
वो किराने वाला एक दिन में 100 पैकेट दूध लाता है, वो किराने वाला एक दिन में 100 पैकेट दूध बेच देता है, राइट? तो इन द केस ऑफ पेरिशेबल कमोडिटी स्टॉक वुड बी इक्वल टू सप्लाई, बट नॉर्मली इन केस ऑफ अदर गुड्स स्टॉक हमेशा ज्यादा होगा और स्टॉक में से ही सप्लाई निकलेगा. सप्लाई इज लेस देन स्टॉक, स्टॉक इज ऑलवेज मोर देन सप्लाई एक्सेप्ट इन केस ऑफ पेरिशेबल कमोडिटीज. अभी स्टॉक एक बाजू पड़ा हुआ रहता है ना गोदाम में, therefore we call it as a fund concept, FUND fund. और सप्लाई क्योंकि रोजाना बदली होते रहता है प्राइस के हिसाब से, तो वी कॉल इट एज अ फ्लो कंसेप्ट. आई जस्ट राइट इट फॉर यू. स्टॉक वी कॉल इट एज फंड कंसेप्ट और सप्लाई हम लोग बोलते हैं फ्लो कंसेप्ट. ये एग्जामिनर्स का जो है बहुत ही फेवरेट टॉपिक है एंड नॉर्मली ऑब्जेक्टिव्स के अंदर ये हमेशा आपको पूछते रहेंगे. ठीक है, मार्क्स के हिसाब से बहुत ही छोटी चीज है. द ओनली थिंग द कंसेप्ट शुड बी क्लियर. नेक्स्ट वी कम टू द डेफिनेशन ऑफ द लॉ ऑफ सप्लाई. डेफिनेशन क्या है, विल गो थ्रू द टेक्स्ट बुक. ठीक है, लेकिन आप समझ गए होंगे डेफिनेशन क्या होगा सप्लाई का. जैसे जैसे प्राइस बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे क्वांटिटी सप्लाइड गोज ऑन इंक्रीजिंग एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम. सो हाउ डू वी डिफाइन इट? Okay, who has defined it? That is also important. The definition is given by Professor Paul Samuelson has defined the supply or the law of supply. किस तरीके से डिफाइन करते हैं? Supply refers to the relation between market prices and the amount of goods that producers are willing to supply. Supply refers to the relation between market prices, the price, and the amount of goods that the producers are willing to supply. मतलब दोनों के बीच के रिलेशन को लॉ ऑफ सप्लाई बोलते हैं. रिलेशन क्या होगा? When the quantity of a commodity goes on increasing, the supply of that commodity also goes on increasing. डिमांड में क्या था? डिमांड में हम लोग कस्टमर थे. जब भी वो चीज की प्राइस बढ़ जाती थी तो हम लोग कम खरीदते थे. अभी सप्लाई में क्या हो गया, मैं खुद बेच रहा हूं, तो जब भी वो चीज की प्राइस बढ़ जाती है तो मैं भी और बेचने लगता हूं. दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द लॉ ऑफ सप्लाई. नाउ वी विल कम टू इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल एंड इंडिविजुअल सप्लाई कर्व. आई होप यू हैव वॉच्ड माई लेक्चर्स ऑन डिमांड. तो हम लोग अभी क्या करेंगे, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल के अंदर देखेंगे कि एक सप्लायर क्या करता है. मार्केट सप्लाई शेड्यूल के अंदर देखेंगे कि अगर एक से ज्यादा सप्लाईज है तो वो लोग क्या करते हैं, क्या रिलेशन होगा. राइट? तो कीप योर बुक्स एंड पेन रेडी. मैं अभी आपके सामने टेबल प्रेजेंट करता हूं, वो आप लोग अपनी बुक में भी लिखेंगे. Here we have the individual supply schedule and here we have the individual supply curve. इंडिविजुअल मतलब एक आदमी, जब एक आदमी सप्लाई कर रहा है तो उसका सप्लाई शेड्यूल किस तरीके से दिखेगा और उसका कर्व किस तरीके से दिखेगा. ठीक है, आपको याद होगा, आप पहले के लेक्चर्स में बार बार सुन चुके हैं कि यू शुड बी पैशनेट अबाउट शेड्यूल्स, यू शुड बी पैशनेट अबाउट ग्राफ्स. अगर आपको नहीं भी पूछा हो तो जहां भी पॉसिबल हो, अगर ये आपकी आंसर शीट है, आप यहाँ पे आंसर लिख रहे हो, हल्का से मार्जिन ड्रॉ करके ऐसे ग्राफ और अगर शेड्यूल ड्रॉ करोगे तो द एग्जामिनर वुड बी वेरी वेरी इम्प्रेस्ड. ठीक है. नाउ लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है, क्या था डेरिवेशन? जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होगा वैसे वैसे सप्लाई भी इंक्रीज होगा नॉर्मल कमोडिटीज में. ठीक है. नाउ हियर आई एम टेकिंग द प्राइस, लेट्स से सम एक्स कमोडिटी है, रुपीस पर केजी, और क्वांटिटी इन केजीस में कितना सप्लाई करने के लिए तैयार हूं. तो व्हेन आई सॉ, नाउ लेट्स से हम लोग कौन सा एग्जांपल लिए थे, शुगर का लिए थे. अगर शुगर का प्राइस 10 है तो आई एम विलिंग टू सप्लाई 100 किलोज ऑफ द कमोडिटी. इफ द प्राइस ऑफ शुगर इज 20, आई एम विलिंग टू सप्लाई 200. सिमिलरली इफ द प्राइस गोज अप टू 50, आई एम विलिंग टू सप्लाई 500. तो व्हाट डू वी सी हियर, जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जाता है वैसे वैसे क्वांटिटी सप्लाइड जो मैं बेचने के लिए तैयार हूं, दैट ऑल्सो गोज ऑन इंक्रीजिंग. अभी अगर मैं इसको प्लॉट करता हूं ग्राफ पेपर पे तो वो कर्व मुझे कैसा दिखेगा,
इसलिए ऑपोजिट टू द लॉ ऑफ डिमांड. जिस तरीके से हम लोग एक्सेप्शनल डिमांड कर्व किए थे ना, उस तरीके से सप्लाई कर्व बनेगा. बट लेट्स नॉट गेट कंफ्यूज्ड. Okay, this is the x-axis, this is the y-axis. On the x-axis, always we'll take the quantity, and on the y-axis, always we'll take the price. 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200, 300, 400, 500. Okay, then the price is 10, the quantity is 100. Price is 10, quantity is 100. Very good. Price is 50, quantity is 500. Price is 50, quantity is 500. तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं the seller is moving upwards, ऊपर की तरफ जा रहा है, towards the right. ठीक है. Law of demand कैसा था? If somebody remembers, it slopes downwards from left to right. The law of supply rises upwards from left to right. This is my left, this is my right. The law of supply says that when the price of a commodity increases, the quantity supplied will go on increasing. Okay, and the supply curve will move upwards from left to right. Okay, I hope there is no ambiguity. Now this is for an individual person, and this was an individual supply curve. Now let's come to the market supply schedule and the market supply curve. The next we see is the market supply schedule and curve. In the individual supply schedule and the individual supply curve, we were seeing only one seller. ठीक है, तो हमारा शेड्यूल सिर्फ एक ही था. नाउ एज एन एग्जांपल, उदाहरण के तौर पे, मिसाल के तौर पे, वी आर टेकिंग एग्जांपल ऑफ 3 sellers इन द मार्केट A, B, C. If the price, let's say of commodity X in kilograms is 10, 20, 30, 40, 50, तो ये सेलर का रवैया क्या होगा, वो लोग कितना बेचने के लिए तैयार है जब प्राइस इज 10, जब प्राइस इज 30, जब प्राइस इज 50. ओके, लॉजिक वही है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जाता है वैसे वैसे क्वांटिटी भी बढ़ती जाती है. लेकिन हो सकता है कि जब प्राइस 10 है तो सेलर A इज विलिंग टू सेल 100 किलोस. नाउ दिस इज इन केजीज, राइट? सेलर B इज विलिंग टू सेल 200, सेलर C इज विलिंग टू सेल 300. तो ये इसका इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल हो गया. ये B कॉलम और प्राइस उसका इंडिविजुअल हो गया. ये सेलर C का इंडिविजुअल हो गया. लेकिन व्हेन आई एड अप ऑल द इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल्स, सारे इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल्स को जब मैं ऐड करता हूं एक पर्टिकुलर मार्केट के अंदर, जो मुझे टोटल मिलता है, दैट आई विल कॉल इट एज मार्केट सप्लाई. मैं यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूं कि देयर आर ओनली 3 सेलर्स इन द मार्केट A, B, C. तो जब मैं ये ऐड करता हूं, व्हाट डू आई फाइंड? पूरे मार्केट के अंदर एज अ होल, व्हेन प्राइस इज 10, मार्केट सप्लाई इज 600. व्हेन प्राइस इज 30, मार्केट सप्लाई इज 1200. When price is 50, market supply is 1800 kilos of whatever commodity. Let's say sugar. Right? In individual supply schedule, one seller. In market supply schedule, many sellers. As an example, we have taken only 3. Same thing, if I try to plot it on a graph, on the x-axis, I take quantity supplied in kgs. On the y-axis, I take the price. So here, what do I have? These are multiple of 3. 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15, 3 6s are 18. So if I say this is 1 centimeter, so I will say 1 centimeter is equal to 300 kgs. तो 300, 600, 900, 1200, 1500, 1800 बेसिक प्लॉट करने आपको आना चाहिए. ठीक है ना? तो अब ये मत पूछिएगा अंकल ये तो 600 से स्टार्ट हो रहा है तो आप 300 से क्यों प्लॉट किए. तो 0 से जब मैं शुरू कर रहा हूं, तो अगर मैं 0 से 600 लूंगा तो नहीं चलेगा ना बेटा, क्योंकि इसके अंदर 300 का फर्क है. एनीवे, दैट बेसिक यू आर अवेयर. तो y एक्सिस पे मैं प्राइस लेता हूं, x एक्सिस पे मैं क्वांटिटी सप्लाइड लेता हूं, एंड व्हेन आई ट्राई टू प्लॉट इट, 10 रुपए में कितना मार्केट सप्लाई 600, इधर है 10, यहाँ पे क्वांटिटी कितना है 6, ये प्लॉट किया मैं. ओके, प्राइस इज 50, मार्केट सप्लाई इज हाउ मच 1800. व्हेन प्राइस इज 50, मार्केट सप्लाई इज हाउ मच 1800. In this case also we see that the supply curve moves upwards from left to right. Okay, so now we have seen what is an individual supply schedule, we have seen what is an individual supply curve, we have seen what is a market demand schedule, we have seen a market supply curve, right? Now in your textbook, come, let's in the next very fast in the 5-6 minutes,
विल सी के सप्लाई किस पे डिपेंड करता है। तुम्हें अगर ज्यादा बेचना है, तुम्हें कम बेचना है, तो सिर्फ प्राइस की वजह से ही आप ज्यादा कम बेचोगे कि और भी कोई वजह है? वो और भी कोई वजह जो है, दे आर कॉल्ड एज डिटर्मिनेंट्स। मतलब वो कौन सी चीजें हैं दैट डिटरमाइन द लॉ ऑफ सप्लाई, जिसपे सप्लाई डिपेंड करता है, दे आर कॉल्ड एज डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, तो लेट्स फटाफट गो थ्रू दैट आल्सो। Okay, now coming to the last topic in today's session. If you remember, today is the first session on supply analysis. We have seen what is total output, we have seen what is stock, we have seen what is supply, we have seen individual supply schedule and curve, we have seen what is market supply schedule and curve. I'm sorry. For today's first session, we will be having around 5 sessions on supply approx. Okay, now for today's session, this is the last topic, determinants of the law of supply. Supply किन चीजों पे डिपेंड करता है? Let's go through it. First, price of a commodity. मतलब ये आपके जहन में आना चाहिए when we are talking about this thing, मतलब ये किस तरीके से सप्लाई को अफेक्ट करती है, किस तरीके से के सप्लाई पे फर्क पड़ता है ये सारी चीजों से. Okay, that is determinants of supply. सबसे पहले प्राइस ऑफ अ कमोडिटी. प्राइस इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई. अगर से कोई चीज सबसे ज्यादा सप्लाई को अफेक्ट करती है वो है प्राइस एंड प्राइस ओनली. बट उसके साथ और भी फैक्टर्स है, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? प्राइस. व्हेन यू गेट अ क्वेश्चन व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द लॉ ऑफ सप्लाई, तुम्हारे को 6 से 8 पॉइंट याद होना चाहिए. 6 पॉइंट्स आर मोर देन सफिशिएंट. लेकिन वो अच्छी से अगर आप लिखिए, उसके हेडिंग लिखिए, इसको अंडरलाइन कीजिए और उसके नीचे उसका मैटर लिखिए, यू आर गोइंग टू गेट गुड मार्क्स. अगर आपकी स्पीड अच्छी है, अगर आपकी राइटिंग अच्छी है, यू राइट दिस इन ब्लैक पेन, यू अंडरलाइन दिस इज विद ब्लैक पेन और इसके नीचे ब्लू पेन से मैटर लिखिए, फैंटास्टिक. ठीक है, योर प्रेजेंटेशन आल्सो शुड बी इंपॉर्टेंट. जब भी वो चीज का, वो कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है, तो इफ आई एम अ सेलर, मैं वो चीज ज्यादा सप्लाई करूंगा. ठीक है, फर्स्ट. सेकेंड, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी मतलब मैं किस तरीके से वो चीज को प्रोड्यूस कर रहा हूं. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वॉन्ट टू मैन्युफैक्चर अ पेन, ठीक है, या कोई भी चीज, तो उसके अलग अलग स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी हो सकती है ना. हो सकता है कि मैं मजदूर लोगों को बिठा के वो चीज बना रहा हूं, और एक तरफ हो सकता है कि मैं एक बड़ा मशीन डाल दिया और मशीन फटाफट बना रहे. चटाई होती है ना सादी, मशीन भी चटाई बनाता है और लोग भी चटाई बनाते हैं. तो स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी मतलब अगर मशीन ज्यादा बनाएगा, तो अगर मैं यहाँ पे मशीन का इस्तेमाल कर रहा हूं तो क्या होगा? आई विल बी एबल टू सप्लाई इट एट अ लेसर प्राइस. ठीक है ना, मैं ज्यादा प्रोडक्ट्स भी सप्लाई कर सकूंगा मार्केट के अंदर. क्यों? क्योंकि मेरा मशीन प्रोड्यूस, इतने सारी चीज में प्रोड्यूस कर सकता हूं. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब वो चीज को बनाने के लिए मैं कितना खर्चा कर रहा हूं. व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, हम लोग यहाँ पे करेंगे. लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज. वो चीज को बनाने के लिए मुझे कितना खर्चा लग रहा है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. मेरा खर्चा ज्यादा है तो मेरा प्राइस बढ़ेगा, राइट. इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी. व्हाट डू यू मीन बाय इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी? कोई कंट्री अगर है, अगर वो डेवलप्ड है, तो यू विल हैव नाइस रोड्स, यू विल हैव नाइस रेलवेज, यू विल हैव नाइस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स वगैरह. मतलब जहां से वो चीज फैक्ट्री के अंदर प्रोड्यूस होकर तुम्हारे पास आ रही है, अगर बहुत फास्ट आ जाती है, सस्ते में आ जाती है, तो द सप्लाई ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी विल इंक्रीज. सो दैट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सॉरी दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी. गवर्नमेंट पॉलिसी. कोई कोई कंट्रीज के अंदर गवर्नमेंट इंकरेज करती है वहां के लोगों को कि तुम ये चीज बनाओ, हम लोग तुम्हारे को कंसेशन देंगे. फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट विल से कि हम तुम्हारे को जमीन लेके दे देंगे, ठीक है, तुम तुम्हारा खाली वहां पे गोदाम बनाओ, फैक्ट्री बनाओ. गवर्नमेंट बोलेंगे अगले 5 साल तक का तुम इलेक्ट्रिसिटी बिल मत भरो, रास्ता गांव से लेके वहां तक हम बना के दे देंगे. क्यों? क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का भी फायदा होता है. गवर्नमेंट वो ओनर को बोलती है कि वो इलाके के जो गरीब लोग हैं उन लोग को तुम एम्प्लॉय करो, ताकि वो लोग का एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, वो लोग की इनकम बढ़ेगी. ठीक है ना, इसीलिए गवर्नमेंट पॉलिसी कभी कभी होती है, गवर्नमेंट कंसेशन देती है. नेचुरल कंडीशंस, खास करके फॉर कंट्री लाइक इंडिया, ओके, अगर एग्रीकल्चरल कमोडिटीज का हम लोग देखें तो वी नीड गुड नेचुरल कंडीशंस. अच्छी बारिश, अच्छा सनलाइट अगर होता है तो ज्यादा उत्पादन होएगा, तो मार्केट के अंदर सप्लाई भी बढ़ेगा. अगर बारिश नहीं हुआ कोई टाइम पे, तो क्या होता है, मार्केट में सप्लाई नहीं आता है. मार्केट में सप्लाई नहीं आता है, महंगाई बढ़ जाती है, प्राइस बढ़ जाता है. फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग प्राइस.
अभी इसको हु कैन एक्सप्लेन दिस, ये हम लोग शायद डिमांड में भी किए हैं। अभी नाउ एज आई सेड अर्लियर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सप्लाई, यू शुड एज्यूम दैट यू आर अ सेलर। ठीक है, अभी फर्स्ट चलो तुम्हारे पास पेट्रोल पंप है, तुम्हारे पास पेट्रोल पंप पे आज की तारीख में 70 रुपीज पर लीटर के हिसाब से तुमने पेट्रोलियम कंपनी, भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम से पेट्रोल लेके अपने नीचे जो टैंक होती है पेट्रोल पंप के वहां पे भर लिए एट द रेट ऑफ ₹70 पर लीटर। ठीक है, लेकिन तुम्हें ये पता चला कि अभी गवर्नमेंट का डिसीजन हुआ है, कैबिनेट मीटिंग हुई है और आज रात 12 बजे से प्राइस बढ़ जाएगा। आज 70 रुपया है तो कल 80 रुपया हो जाएगा। और मैं, मेरे पास जितना पेट्रोल जमा करके रखा हूं, आई हैव 1 लाख लीटर्स ऑफ पेट्रोल इन माई अंडरग्राउंड टैंक एट द रेट ऑफ ₹70 और मैं उसको बेचता था 75 में। अब मुझे पता चल गया कि गवर्नमेंट प्राइस बढ़ा दी है, तो कल की जब सुबह होगी तो मैं कल कितने में बेचूंगा, उसको 85 में बेचूंगा। तो आज की तारीख में मैं क्या करूंगा, मेरा पेट्रोल पंप बंद कर दूंगा? नहीं, बॉस के घर में आंटी, बॉस के आंटी गुजर गए तो पेट्रोल पंप बंद हो गया। लेकिन लॉजिक क्या है, क्योंकि कल प्राइस बढ़ने वाला है इसके लिए मैं आज सप्लाई कम कर दिया। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग फ्यूचर प्राइसेस। अदर फैक्टर्स आर आल्सो देयर लाइक नेचर ऑफ मार्केट, होलसेल मार्केट है, रिटेल मार्केट है, दूर है, नजदीक है, रिलेटिव प्राइसेस ऑफ अदर गुड्स, दूसरे गुड्स की कंपैरिजन। अल्लाहु अकबर। फर्स्ट वाज नेचर ऑफ मार्केट्स, सेकेंड इज रिलेटिव प्राइसेस ऑफ अदर गुड्स, मतलब जो दूसरे कमोडिटीज है उसका प्राइस क्या है। अगर वो एकदम कॉम्पिटिटिव है तो तुम क्या करोगे, तुम तुम्हारा प्राइस थोड़ा छोटा कर दोगे, जो तुम्हारी जो प्राइस आ रही है। ठीक है, इफ यू आर स्टॉकिंग शुगर एट 38 रुपीज, बाजू में तुम्हारे पास दूसरा कोई आर्टिफिशियल चीज है तो उसको तुम कंपेरेटिव करोगे, या टी कॉफी है। ठीक है, वैसा। एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स, कोई चीज तो मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तुम्हारे को पड़ी 10 रुपए की, और वहां से इंपोर्ट्स अगर आ रहे हैं, इंपोर्ट मतलब कोई चीज जो गवर्नमेंट अंदर ले आती है, बाहर से कोई दूसरे कंट्री की चीज अगर इंडिया में आ रही है तो आई कॉल इट एज एन इंपोर्ट, और यहाँ की चीज अगर बाहर जा रही है तो आई कॉल इट एज एन एक्सपोर्ट। तो अगर बाहर की चीज यहाँ आ रही है, इंपोर्ट हो रही है, और वो चीज ज्यादा सस्ती है तो ऑब्वियसली लोग मेरी चीज लेंगे नहीं। मुझे लगता है अरे मेरी पेन मैं तो बहुत सस्ते में दे रहा हूँ, 10 रुपए में दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी लोग नहीं ले रहे। क्यों? क्योंकि दूसरी कंट्री की जो आई है ना चीज, वो बंदा यही पेन 5 रुपए में दे रहा है, तो लोग तुम्हारे से लेंगे क्या? नहीं लेंगे। क्यों? बिकॉज प्राइसेस ऑफ अदर गुड्स, रिलेटिव प्राइसेस ऑफ अदर गुड्स, व्हाई? बिकॉज ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। ये दोनों चीज इसमें आ गई। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, मैनेजमेंट और लेबर के कैसे रिलेशन है। ठीक है, मजदूर लोग वो लोग काम करते हैं, बॉस लोग कैबिन में बैठे हैं, वो लोग के अगर वर्किंग कंडीशंस अच्छे हैं, रिलेशंस अच्छे हैं, वर्कर्स अगर खुशी खुशी काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली द फैक्ट्री विल वर्क वेरी नाइसली, सप्लाई बढ़ेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यू विल फाइंड मेनी सच फैक्टर्स। अवेलेबिलिटी ऑफ एफओपी, एफओपी है ना, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। लेबर मतलब मजदूर, अगर तुम्हारे पास मजदूर है, ज्यादा अच्छे मजदूर है तुम्हारे पास, स्किल्ड वर्कर है, स्किल्ड मैन पावर है, सप्लाई बढ़ेगा। लैंड, अगर तुम्हारे को फैक्ट्री बनाने का लैंड तुम्हारे को सस्ते में मिल गई, सप्लाई बढ़ेगा। उसी तरीके से कैपिटल, तुम्हारे को बैंक सस्ते में लोन दे दी, कैपिटल बढ़ेगा। तो इफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर अवेलेबल एंड एट अ गुड रेट, तो योर सप्लाई विल इंक्रीज। तो दीज आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द लॉ ऑफ सप्लाई। ये चीजें डिटरमाइन करती है कि सप्लाई घटेगा या सप्लाई बढ़ेगा। अगेन, प्राइस इज ओनली वन ऑफ द डिटर्मिनेंट्स, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट। अगर ये सारा फेवरेबल है तो सप्लाई बढ़ेगा, अगर ये फेवरेबल नहीं है तो सप्लाई नहीं बढ़ेगा। In the next lecture, we'll do the law of supply, right? उसका diagram, उसका curve, what are the assumptions, what are the exceptions, ठीक है? All those things we shall cover in the next lecture. Till then, please keep on watching. Padle Baba.